Good morning to all students. Your subject is biology, part 21, class 10, chapter life processes, learning topic heartbeat. Heartbeat, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, हृदय का फैलना और सिकुड़ना. ठीक. The movement of heart, the movement of heart is called heartbeat. Is called heartbeat. The process by which the heart expand and contract, expand and contract is called heartbeat. Heartbeat. In a healthy person, the number of heartbeat per minute is 72 times. 72 times. यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय का धड़कना 1 मिनट में 70 से 72 बार होती है. 70 से 72 बार होती है. दिस प्रोसेस इज चेंज इन यंग बॉर्न बेबी जो है उसमें 140 बार यह प्रक्रिया होती है. तो द मूवमेंट बाय विच हार्ट एक्सपेंड is called diastole, or this movement is called diastolic movement, or the movement by which heart contract is called systole or systolic movement. So there are two types of movement occurs during opening and closing of heart: diastolic movement and systolic movement. Diastolic movement and systolic movement. This is called diastole and systole. Diastole and systole. One complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. One complete and a contraction and relaxation of heart is called heartbeat. Heartbeat. Number of heartbeat बताए हैं 1 मिनट में. 1 मिनट में number of heartbeat. Number of heartbeat. Heartbeat in 1 minute. In 1 minute. 1 minute in a healthy person, 1 minute is equal to 72 times. 72 times per minute. ठीक, ये हो गया. इसके बाद है पल्स. इसके बाद क्या है? पल्स मीन्स नाड़ी. ठीक, पल्स क्या है? कहता दी एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी each time the blood is forced into it is called pulse. कहता है कि the expansion of an artery each time the blood is forced into it is called pulse. Each heartbeat generates one pulse in the artery, so the pulse rate of a person is equal to the number of heartbeat. And a pulse rate is equal to number of heartbeat. Number of heartbeat. जितना number of heartbeat होगा उतना ही होगा pulse. ठीक, the number of heartbeat is equal to number of pulse. ठीक, इसके बाद बतलाए हैं आपको. तो बतलाए हेल्दी पर्सन में 70 से 72 बार बतलाए हैं ना क्या? पल्स. ठीक, कहता है पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट पर, रिस्ट कलाई, WRIST, रिस्ट मीन्स कलाई से नंबर ऑफ पल्स काउंट किया जाता है. नंबर ऑफ पल्स काउंट बाय रिस्ट है ना, बाय रिस्ट. इसके बाद कहता है कि ठीक कहता है कि हार्टबीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या पल्स में हार्टबीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. उसका नाम है स्टेथोस्कोप. पल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक,
इसके बाद है बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, PRESSURE, ब्लड प्रेशर। कहता है कि the movement of blood in a closed blood vessels is called blood pressure. Blood pressure. The pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. कहता है कि the blood pressure of a person is always expressed in the forms of two values called systolic pressure and diastolic pressure. Systolic pressure और diastolic pressure की चर्चा शुरू में ही किया है इस क्लास में। Systolic pressure and diastolic pressure. The expansion movement of heart is called systole. The contraction movement of the heart is called diastole. Diastole. And diastole or systole contraction or diastole expansion. There are two types of movement. कहता the maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery during contraction phase is called the systolic pressure. Systolic pressure. पहले blood pressure BP normal healthy person का BP का रेट है 120/80 mmHg, जिसको कहते हैं मिली मरकरी 120/80। This is systolic pressure. This is diastolic pressure. और पल्स प्रेशर क्या? पल्स प्रेशर जब हमें निकालना है, पल्स प्रेशर PP इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना? 40 mmHg। यह जो हो गया आपका हो गया पल्स प्रेशर है ना। सिस्टोलिक प्रेशर है ना माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों का डिफरेंस जो है निकाल दे वो पल्स प्रेशर हो गया, पल्स प्रेशर PP। ठीक, इसके बाद अतः सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर सब बतलाए। दिस इज जो रिटर्न इस तरह से है ना। हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर बतलाते हैं कैसे से, तो कैसे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। कहता दी एबव ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। कहता कि ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट and called sphygmomanometer. Sphygmomanometer ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऊपर में लिखा है यह है किसका? पल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग MEASURING मेजरिंग। यहाँ इसमें ऐसे कर ब्लड प्रेशर मेजरिंग यहाँ से लिखते हैं MEASURING मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसका नाम है क्या? स्फैग्मोमैनोमीटर ए ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, यह इसी से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक, इसके बाद है जाकर के कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में सुनिए। कहता है कि द प्रेशर कैन बी सीन ऑन द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ स्टेथोस्कोप है ना। कहता स्टेथोस्कोप की मदद से बताए हैं पल्स प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। इसके बाद हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स। इसके बाद है हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स। भोजन और ऑक्सीजन आपके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक कैसे जो है मिल पाता है। आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उसको भोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में सुनिए। कहता है कि द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स है ना। बॉडी सेल्स कहता है कि बॉडी सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड थोड़ा सा बता देते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड मेन चीज है, बता देते हैं टिश्यू फ्लूइड क्या है इसके बारे में। टिश्यू फ्लूइड कहता है लिक्विड फ्रॉम द ब्लड, रक्त में पाए जाने वाला वह तरल पदार्थ
कहता विच इज फोर्स आउट थ्रू द कैपिलरी, जो कैपिलरी से रक्त के शिकाओं से बाहर निकल जाता है, जो रक्त के शिकाओं से क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स, और शरीर के जो कोशिकाएं जो हैं उसके बीच में गति करने लगता है ना, तब उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। तब उसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक, टिश्यू फ्लूइड, यही लिक्विड है टिश्यू फ्लूइड। और कहता है कि कहता है टिश्यू फ्लूइड। इसके बाद बतलाते हैं टिश्यू फ्लूइड, द टिश्यू फ्लूइड ना कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, ब्लड टू द सेल्स, ब्लड टू द सेल्स, ब्लड टू द सेल्स, ब्लड ब्लड टू द सेल्स, ब्लड टू द सेल्स, यानी रक्त से कोशिकाओं तक जाता है। कौन सी, रक्त से हर कोशिका तक भोजन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कौन करवाता है, रक्त करवाता है, ब्लड टू द सेल्स जाता है। ठीक, फूड और ऑक्सीजन एंड पिकअप देयर बेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and after doing this job most of the tissue fluid कहता है कि ships back into blood capillaries, blood capillaries में रिस जाता है। the remaining tissue fluid carrying large protein molecule digest fat germs and form the cells and fragments of dead cells enters into another type of teeny tubes called lymph capillaries, lymph capillaries में lymph capillaries lymph lymph कैपिलरी CAPILLARIES लिम्फ कैपिलरी में चला गया है। फिर चला गया टिश्यू फ्लूइड, कहाँ चला गया, लिम्फ कैपिलरी से। लिम्फ कैपिलरी से फिर हार्ट में चला जाएगा, फाइनली जाएगा हार्ट में। लिम्फ भी फाइनली कहाँ जाता है, हार्ट में ही जाता है। लिम्फ हो या ब्लड हो, वो फाइनली जाएगा कहाँ, फाइनली चला जाता है हार्ट में ही चला जाता है ना। ब्लड भी आता है, इसमें आता है ब्लड भी आता है, BLOOD ब्लड, और लिम्फ भी इसी में आता है, LYMPH लिम्फ, दोनों आता है, दोनों ब्लड और लिम्फ दोनों चला आता है कहाँ, हार्ट में आता है दोनों, है ना। ऐसा बात नहीं कि लिम्फ दूसरी जगह चला जाता है। ठीक, फोर्थ चैम्बर हार्ट है, ये तो टू चैम्बर दिखाया है, इसी तरह से फोर्थ चैम्बर हो जाता है, यहाँ से ऐसे चैम्बर इस तरह के फोर्थ चैम्बर हार्ट हो जाता है और क्या करके। ठीक, इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम बतलाना है। चलिए 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप और साफ करते हैं। इसके बाद बतलाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, साफ करता हूं ब्लैक बोर्ड। हेडलाइन हार्ट बीट रहेगा, हार्ट बीट से शुरू किया है, वही रहने देते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम बतलाते हैं। लिम्फेटिक LYMPHATIC लिम्फेटिक सिस्टम SYSTEM। लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र, लसिका तंत्र लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम लसिका। लिम्फ है क्या पहले, व्हाट इज लिम्फ, तो LYMPH लिम्फ। लिम्फ इक्वल टू ब्लड, एक प्रकार का रक्त ही है, ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन। ठीक, ये लिखिए कि लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड ही है, लेकिन उसमें होता नहीं है क्या, माइनस, इसका मतलब कि एब्सेंट रहता है इसमें, माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन। आरबीसी नहीं पाया जाता है उसमें और कुछ प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते, यही है लिम्फ, लसिका। ठीक, आगे कहता है कि द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। लिम्फेटिक सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन है, पार्ट्स PARTS, पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम LYMPHATIC लिम्फेटिक सिस्टम SYSTEM लिम्फेटिक सिस्टम।
पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला जो फर्स्ट पार्ट जो इसका होगा, वह जो फर्स्ट पार्ट जो है लिम्फ कैपिलरीज है। लिम्फ LYMPH लिम्फ कैपिलरीज LARIES। फर्स्ट है लिम्फ कैपिलरी। सेकंड जो है लिम्फेटिक नोड्स भी होगा इसमें, ठीक। एंड लार्जर लिम्फ वेसल्स है LYMPH लिम्फ वेसल्स VESSELS लिम्फ वेसल्स, ठीक। थर्ड जो है वह है लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स LYMPH लिम्फ नोड्स NODES नोड्स। और फोर्थ जो है वह जो है जाकर के है ना लिम्फ जो बहता है, लिम्फेटिक LYMPH लिम्फ। यही चार जो है इसके क्या है ना पार्ट्स हैं। लिम्फ पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के भाग हिस्से, जिसे लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको। और लिम्फ और क्या है लिम्फ है, ठीक। जा करके और एक एक करके बतलाते हैं लिम्फ कैपिलरीज के बारे में। लिम्फ कैपिलरी या टीनी ट्यूब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी होल बॉडी में लिम्फ कैपिलरीज, ठीक, आ जाता है। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरीज यहाँ पे आगे जुड़ करके और लिम्फेटिक वेसल्स का निर्माण करता है, ठीक। और लिम्फेटिक नोड्स फिर इसके बाद जो है द लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। एक कैरी करता है, इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट्स LYMPHOCYTES। लिम्फोसाइटिक सेल कैरी करता है क्या, लिम्फ नोड्स बतलाता है, WBC बनाता है, ठीक। और लिम्फ तो लिक्विड है, फ्लूइड है ना, जो बहता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में। लिम्फ इज ए लाइट येलो लिक्विड विच कलर कैसा है लिम्फ का कलर कैसा है, लाइट येलो है ना, लाइट येलो हल्का पीला कलर का कलर है ना, लिम्फ का कलर है लाइट येलो कलर है लिम्फ का, ठीक। और कुछ बतलाते हैं इस तरह से, लिम्फ कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ white blood cells called lymphocytes which help in fighting infection and diseases। ये lymphocyte जो है fight against infection, fight against 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 infection and diseases DISEASES इसमें मदद करता है। और लिम्फोसाइट WBC सेल भी बनाता है, द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स और लिम्फेटिक सिस्टम आर। और फंक्शन बतलाते हैं क्या, फंक्शन फंक्शन ऑफ लिम्फ LYMPH फंक्शन ऑफ लिम्फ के कार्य कौन कौन सा काम करता है लिम्फ। फर्स्ट फंक्शन बताते हैं, कहता है कि लिम्फ टेक पार्ट इन दी न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। इट इज हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी शरीर को पोषण प्रदान करता है। फर्स्ट में जो है सेकेंड क्या फंक्शन करता है, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन आउट द बॉडी टिश्यूज एंड विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड हेल्प अगेंस्ट AGAINST अगेंस्ट इन्फेक्शन संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है, बॉडी को संक्रमित होने नहीं देता है। या तीसरा जो है कहता है इट प्रोड्यूसेज एंटीबॉडी, WBC सेल जो है वो एंटीबॉडी का बनाने का भी काम करता है जी, यह एंटीबॉडी बनाने का भी काम करता है। कौन एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, WBC सेल है ना, लिम्फोसाइट्स। और lymphatic system help in removing the waste product like fragments of dead cells, removing dead cells inside the body, removing
removing dead cells inside the body to outside, inside to outside the body, outside the body. ये हुआ कितना लिम्फ का फंक्शन इतना हुआ। ठीक, चलिए एक सेकंड कर ले, रुक करके फिर नहीं, इसके बाद जो है आपको है नोट कर लेंगे इतना। इसके बाद आपका है एक्सक्रेशन। इसके बाद क्या है? एक्सक्रेशन, साफ करते हैं। इसके बाद है आपका एक्सक्रेशन। ठीक, एक्सक्रेशन बतलाते हैं। एक्सक्रेशन है, इसके बाद उत्सर्जन। एक्सक्रेशन उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन है क्या? एक्सक्रेशन कहता है दी प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। फिर से एक बार, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी ऑफ an organism is called excretion. The removal of toxic substances from inside to outside the body is called क्या? Excretion. Is called excretion. Excretion का definition होकर गया। Excretion का हुआ definition. All the organisms like plants and animals are made up of cells. All living organisms excrete some material from their body during metabolic process के दौरान है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे बेकार पदार्थों को शरीर के भीतरी भाग से बाहरी भाग में बाहर निकालते हैं। अब है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स बतलाते हैं। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, पौधे में उत्सर्जन। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, पौधे में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में। ठीक, कहता है कि the main waste product produced by plants are carbon dioxide, water and oxygen. वेस्ट प्रोडक्ट होगा प्लांट का क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है प्लांट्स का, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके बाद है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट 3 बतलाए। ठीक, इसके बाद आगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स, व्हेreas ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वह किस प्रक्रिया के दौरान? रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान। द गैसियस वेस्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स and carbon dioxide, water vapor and oxygen are removed through the stomata in leaves and lenticels in the stems and released to the air. Okay? The plants also store some of the waste product in their body parts. For example, some of the waste products collect in the leaves, bark and fruits of the plants. The plants get rid of the waste by shedding of leaves, peeling of bark and culling of fruits. कैसे जो है पौधे जो है अपने शरीर के भीतर में बना जो है ना वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालता है, बेकार पदार्थों को कैसे बाहर निकालता है? बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्ती को गिरा करके, शेडिंग ऑफ बार्क है ना, पेड़ का छिलका गिरा करके, और है ना एंड कहता है कि फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, फल भी जो है ना गिरता है उसका पक करके, उसमें भी कुछ बेकार पदार्थ उससे बाहर निकल जाते हैं। ये सब प्रोसेस बतला रहे हैं है ना। बाय मेथड which type of method applied to plants removes their waste product, इसके बारे में बता रहे हैं। कैसे पौधे अपना बेकार पदार्थ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बतलाए। The plants get rid of these wastage by shedding of leaves बतलाए, peeling of bark बतलाए, and falling of leaves or fruits बतलाए। So when the dead leaves, bark and ripe fruits fall off from a tree, then the waste product contained in them are got rid of the plant.
some of the plants wastage get stored in the fruits of the plants in the form of solid bodies called raphides. Raphides है क्या जी? Raphides, RAPHIDES, raphides solid waste है यार, solid waste प्लांट का solid waste है, याद रखना होगा। raphides क्या है? solid waste है प्लांट का। these wastage raphides, ठीक। इसके बाद है जाकर raphides बतला है, ठीक। अब बतलाते हैं क्या इससे आगे, फ्रॉम द above discussion and we conclude that the various methods used by the plant to get rid of their waste product are the following. Method applied by which plants get rid their waste product है कहता है कि कौन कौन सा कहता है कि get rid of waste product plant है ना। मेथड अप्लाइड टू, यहाँ से मेथड अप्लाइड applied to and plants get rid छुटकारा पाता है पौधा, get rid wastage, ठीक। कहता कि पौधे जो है ना इस प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन सा प्रक्रिया अपना करके अपने शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पौधे को शरीर से बेकार पदार्थ निकालने का तरीका फर्स्ट जो है वह फर्स्ट मेथड बताते हैं कौन से। कहता है कि प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स रिमूव गैसियस शॉर्ट में लिखते हैं गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालता है, गैसियस वेस्टेज थ्रू स्टोमाटा के द्वारा निकाल देता है। गैसियस वेस्टेज थ्रू स्टोमाटा शॉर्ट में लिखता हूं। सेकेंड, और गैसियस वेस्टेज थ्रू स्टोमाटा के द्वारा बतला दिया, ये स्टोमाटा के द्वारा गैसियस वेस्टेज को प्लांट निकालता है। सेकेंड जो बतला रहा है, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ stored solid and liquid wastage by the shedding of leaves. solid and liquid wastage, liquid waste को कैसे, लिक्विड वेस्ट को किससे, वो लिक्विड वेस्ट को कह रहे हैं कि बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स है ना कहता है कि शेडिंग SHEDDING शेडिंग ऑफ है ना बार्क छाल गिरा करके है ना फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स या लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स और लीव्स, फल को गिरा करके ETC है। ज्यादा क्या लिखना, लिक्विड वेस्ट को इस तरह से गिराता है, लिक्विड वेस्ट छुटकारा पाता है। शेडिंग ऑफ बार्क छाल, पेड़ के छाल गिरा करके, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फल गिरा करके, फॉलिंग ऑफ लीव्स पत्तियों को गिरा करके, इस प्रकार से। और अगला बताते हैं तीसरा थर्ड पॉइंट है ना, कहता है कि the plants get rid of wastage by separating them in the form of gums and resins. In the form of gums and resin, in the form of gums and gums, गोंद के gums and resins के रूप में, gums and resins के रूप में। और फोर्थ पॉइंट इनका काम बताता हूँ कि और कैसे plants also excrete some wastage substances into the soil around them. and some substances है ना कहता है कि क्या, some substances excrete in the soil, कुछ पदार्थ को जो निकाल मिट्टी में छोड़ देता है, in the soil मिट्टी में भी छोड़ देता है। ये वेस्ट पदार्थों से, बेकार पदार्थों से ना पौधे को मुक्ति मिलने का यह तरीका है, ये बतलाए, उपाय बतलाए प्लांट्स में। किसमें बतलाए, प्लांट्स में। इसके बाद है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स जंतुओं में, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे, जंतु में कैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो कहता है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर एक्सक्रेशन व्हिच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कहता है कि इन एनिमल्स इन अमीबा कहता है कि द वेस्ट
material carbon dioxide is removed by diffusion through the cell membrane, but nitrogenous wastage and excess water are removed by the contractile vacuoles. Contractile vacuoles. अमीबा में बतला है. Second point. In earthworm, the tubular structure called nephridia are the excretory organs. In human beings, the microscopic thin tubes form nephron and nephric tubules and arises from kidney. It is responsible for excretion of wastage. Removal of waste product in humans. कहता the major waste product by the human body are carbon dioxide and urea. कहता the waste removal कहता the removal of waste is called excretion. The removal of wastage is called excretion in human beings. In human beings or in any other living organism, removal of metabolic wastage from inside to outside the body is called excretion. It's called excretion. Excretion in humans के बारे में बतलाते हैं. कहता है the excretory system of human beings consists of the following main organs: 2 kidneys, 2 ureters, bladders and urethra. ठीक. The function of kidney is to remove the poisonous substances, urea, other wastage, salts and excess water from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine. Urine. U-R-I-N-E. urine. मूत्र के रूप में. ठीक. बाहर निकालना. called urine. ठीक. इसको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को साफ कर देते हैं और फिर ऊपर से बताते हैं. ठीक. आगे. Each kidney is made up of a large number of excretory units called nephron. The Bowman's capsules and the tubules taken together make a nephron. कहता है कि the waste material like urea remains behind in the tubule. It does not get reabsorbed in blood capillaries. We will now understand the working of the excretory system. Excretory system. थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर बना देते हैं. एक्सटर्नल किडनी का है. This is cortex. This is medulla. Ureter. Urinary bladder. Cortex, medulla, ureter, urinary bladder, भरा हुआ, इसमें यूरिन, यूरेथ्रा, यह हो गया. This is the structure of human excretory system. This is the structure of human excretory system. And structure of STR of human STR of का मतलब structure of human excretory
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, SYSTEM। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बतलाता हूँ। ठीक, रीनल फेलुअर या किडनी फेलुअर एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वाइवल, कैसे किडनी फेलुअर हो जाता है इसके बारे में कहता है। कंप्लीट फेलुअर ऑफ द किडनी allow the urea and other waste product to build up in the blood। कहता है the best long term solution for kidney failure is the kidney transplant। किडनी ट्रांसप्लांट है ना, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट है ना। किडनी फेलुअर में किडनी निकाल जो है, किडनी जो फेल कर गया, जो काम किडनी नहीं कर रहा है, उसको निकाल करके और दूसरा किडनी लगाइए, किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। ठीक, कहता है द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलुअर इज द किडनी ट्रांसप्लांट। कहता है किडनी फेलुअर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन ए किडनी मशीन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डायलाइसिस। इसका रिमेडी है डायलाइसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को छानने के लिए। डायलाइसिस के बारे में सुनिए क्या है। द प्रोसीड्योर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस या यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलाइसिस। इज कॉल्ड डायलाइसिस, डायलाइजिंग मशीन के द्वारा किया जाता है डायलाइसिस। ठीक, कहता है इसके बाद कि as the patient's blood passes through the dialyzing solution, most of the waste like urea present in it pass through the selectively permeable cellulose membrane है ना, cellulose membrane, SPM membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के गुजरता है, सेलुलोजिक मेम्ब्रेन से ट्यूब into the dialyzing solution। The clean blood is pumped back into a vein of the patient's arm। कहता है कि सैंपल प्रॉब्लम है एक, the kidneys in human being are a part of the system of nutrition, respiration, excretion, transportation। इसका आंसर होगा है ना एक्सक्रेशन। क्या होगा, एक्सक्रेशन जो है इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इसका इस क्वेश्चन का कि जो है ना क्या कहता है किडनी इन ह्यूमंस बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी जो है वह ह्यूमन बींग्स में कौन सा सिस्टम से संबंध रखता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से यह संबंध रखता है। दैट्स ऑल, आई एंड माय स्पीच। थैंक यू वेरी मच।